तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन से जो स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है वो है कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 3 appears in the writing the numbers from 1 to 1000. कि we have to find the number of times does the digit 3 appears in the number, writing the numbers from 1 to 1000. Okay, so there will be one digit numbers. Okay, if there are one digit numbers, then 3 will appear only once. Okay, only one. Now for a two digit number, what can happen? For a two digit number, a 3, there can be a 3 which will be counted how many times? 2 times. Or there will be a number 3 here. A 3 number comes here, then there are total how many ways? The total number of ways will be 9. Because leaving 3, anything can come over here. So therefore there will be 9 ways, 9 times. Okay. Now if 3 comes here, then 0 and 3 cannot come over here. So you will be having 8 options. So 8 options over here. So there will be 8 options in which 3 will appear once. Okay. And there is one option in which the 3 appears twice. Now for a 3 digit number. For a 3 digit number, the 3 can come once. If 3 can comes thrice, if 3 comes thrice, there is only one case. And it will be counted how many times? 3 times. If 3 comes twice, okay, if 3 comes twice, then 3 can be placed in how many ways? Either this or this or this, 2 times. Okay, so how many numbers we have here? 9 ways, 9, but here we have 8. So 9, 9, 8. And if the 3 comes only once, so 3 can appear here, here or here. So number of ways by filling this place will be equals to 9. For this it will be 9. For this it will be 8. And here it will be 9. Here again it will be 8 and here again it will be 9. So this is 81. This is 72, this is 72. So these are the total number of times 3 will be counted. Okay, here it is appearing once, hence it will be counted how many times? 1. So 81 into 1. Here it is 1 coming 1 time into 1. Here it is coming 2 times, so into 2, into 2, into 2. Here it is coming 3 times, but there is only one number, so there are 3. Here it is coming how many times? 1 time into 1. 1 time into 1, 2 times, so it is counted as 2. Only one number is there, so this is the total numbers. So what you have to add up? 1, 2, 9, 8, 3, 18, 18, 16, 81, 72, 72. Add up. What is the final answer? Final answer कितना आएगा? 1 plus 2, 3. तो टोटल सम कितना आ जाता है? 300 यहाँ पे. So now digit 3 will appear how many times? 300 times. Okay. Now comes the next question. अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये है, how many 5 letter palindromes? How many 5 letter palindromes can be made? How many 5 letter palindromes can be made from English alphabets? इंग्लिश अल्फाबेट से कितने 5 लेटर पैलिंड्रोम्स? पैलिंड्रोम्स का मतलब क्या होता है? उल्टा सीधा एक समान. ठीक है, जैसे हम लोग उल्टा लिखो या सीधा लिखो, दोनों केस में वो कैसा आएगा? वो सेम काउंट होगा. जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मलयालम, ठीक है, तो इस तरह के जो होंगे वो कितने होंगे ये आपको बताना है. ठीक है, हाउ मेनी 5 लेटर पैलिंड्रोम्स कैन बी मेड आउट ऑफ फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये अपना क्वेश्चन है. तो बताइए ये कितने तरीके से हो सकता है. ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है सिंपल सा, हमें करना क्या है? हमें 5 जगह फिलअप करनी है. 1 2 3 4 5 और टोटल वर्क इज टू फिल अप 5 प्लेसेस. ठीक है, बट इफ इट इज अ पैलिंड्रोम, सो वॉट एवर कम्स हियर it will automatically fill this place. If something comes over here, it will automatically fill this place.
एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इनडायरेक्टली. ओके, सो आपको बेसिकली ये 3 जगह फिल करनी है. ये 3 जगह फिल करते ही 5 जगह अपने आप फिल हो जाएंगी. ठीक है, दैट इज द मेन लॉजिक. ठीक है, जो आपको सोचना है. ठीक है, और ये लॉजिक सिखाने वाली बात नहीं, मतलब ये सिंपल से हमें पता है वाली बात है. ठीक है, तो बेसिकली अब देखो, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज करने हैं तो यहां पे कितने ऑप्शंस होंगे? यहां पे आपके पास 26 ऑप्शंस होंगे. तो 26 ऑप्शंस टू फिल इन द फर्स्ट प्लेस. एज सून एज यू फिल दिस प्लेस, इसको फिल करने का तरीका एक ही होगा. जो यहां आएगा वही यहां आएगा, मिरर इमेज होगा. दूसरा जो आएगा उसके भी फिल करने के तरीके 26 होंगे, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड होगा, तभी जाके पैलिंड्रोम आएगा. ये फिल हो गया तो इसे फिल करने का तरीका एक, और फिर इसको फिल करने के तरीके अगेन 26. तो 5 जगह फिल करने के तरीके हमारे पास आ गए. इसके 26, इसके 26, इसके 26 के. अब यहाँ पे 5 काम एक साथ होने हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26 का क्यूब. हेंस द नंबर ऑफ 5 लेटर पैलिंड्रोम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू 26 क्यूब. ओके, अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मैं आपको एक जैसे बोलते हैं वेरिएबल बेस्ड में करना चाहूँ, ठीक है, तो वेरिएबल बेस्ड में करना चाहूँ तो लेट से अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म कर देता हूँ कि लेट से Pn, ठीक है, लेट से Pn is the number of n letter palindromes that can be formed. ठीक है, Pn is number of n letter palindrome. तो Pn is equals to Pn plus 1 if n is odd. बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर Pn is the number of n letter palindromes then Pn equals to Pn plus 1 if n is odd. This statement is true or false. That is what you have to tell. तो देखिए सिंपल, अगर यहाँ पे अगर मुझे 6 लेटर पैलिंड्रोम बनाने होते तो ये पहली जगह फिल करने के तरीके 26, दूसरे के 26, तीसरे के 26, लेकिन चौथा, पांचवा, छठवा ये मिरर इमेज होते हैं इसके, तो इसको 1 तरीके, इसको 1, इसको 1, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके 26 के क्यूब ही होते. तो नंबर ऑफ 5 लेटर पैलिंड्रोम्स एंड नंबर ऑफ 6 लेटर पैलिंड्रोम्स आर इक्वल. अब समझिए कि यहाँ पे से जनरलाइज फॉर्म में बोले तो लेट से n को मैं बोल देता हूँ 2k plus 1. ठीक है, n को 2k plus 1, तो कितनी जगह है हमारे पास? 2k plus 1. ठीक है, इसमें एक पोजीशन सबसे बीच वाली होगी. इधर कितने होंगे? k, और इधर होंगे k. ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि इसको फिल करने के तरीके 26, तो इसको फिल करने के तरीके 1, इसको 26 तो इसको 1, इसको 26 तो इसको 1, ऐसे करते करते लास्ट वाला 26 तो ये 1. लेकिन ये बीच वाला इंडिपेंडेंटली फिलअप होगा तो 26. तो देख लो ये कितने, ये थे k और ये था 1, तो 26 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 26 will be multiplied k plus 1 times. Okay, now what is k? K is, from here you can find k. K is n minus 1 by 2. If you put over here you will get the 26 की power n minus 1 plus 1, that will give you n plus 1 by 2. Okay, ये कब? जब n क्या है? n कैसा था? ऑड था. ठीक है, अब मान लो n प्लस 1 की बात करें तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2k प्लस 2. तो 1 2 3 ऐसे करते हुए ये, तो देख लो टोटल क्या होगा? आधे, ये आधे कितने हो गए? k प्लस 1, और बाकी के आधे हो गए k प्लस 1. तो आपको तो पहले आधे फिल करने हैं. इन सब जगह को फिल करने के तरीके कितने होंगे? 26 26 26, और जो यहाँ आएगा वही यहाँ पे आएगा, तो 1 1 1 1 तरीके. तो आपका काम तो सिर्फ आधों को भरना है. तो ये कितनी जगह, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो 26 की पावर k प्लस 1 आएगा. तो ये भी 26 की पावर k प्लस 1 आया था, ये भी 26 की पावर k प्लस 1 आया. मतलब दोनों के नंबर ऑफ वेज क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं. हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू. लेकिन अगर ये होता किसके लिए? ऑड के लिए बात कर रहे होते. ठीक है, अगर ये ऑड के लिए बात करते कि n जो है वो इवन होता, ऑड के लिए तो ट्रू आ गया. अगर n इवन होता, जैसे मैं इसको आपको एग्जांपल के फॉर्म में बोलूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 लेटर पैलिंड्रोम कितने होंगे? 26 26 1 1, कितने तरीके हुए? 26 का स्क्वायर. लेकिन अगर 5 लेटर पैलिंड्रोम होता तो ये 26, ये 26, ये 26, लेकिन ये 1 1, तो कितना आता है? 26 का क्यूब.
तो इस केस में ये आपका Pn है और ये आपका Pn+1 है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आपको n वाले क्वेश्चंस कभी मिले तो हमेशा n की कोई अप्रोप्रिएट वैल्यू रख के उसे चेक करना, ये ज्यादा आसान होता है स्टेटमेंट को चेक करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे ये n ऑड की जगह क्या होता है, इवन होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता, ठीक है। अब लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि पैलिंड्रोम्स बनेंगे कैसे, हाउ द लेटर पैलिंड्रोम्स विल फॉर्म। अच्छा, ये भी ध्यान देना कि मान लो अभी यहाँ पे मैं इंग्लिश अल्फाबेट से बना रहा हूं, इंग्लिश अल्फाबेट की जगह अगर मैंने बोलता नंबर्स, ठीक है, 5 लेटर नंबर पैलिंड्रोम, मतलब मैं अल्फाबेट्स की जगह क्या यूज कर रहा होता, अल्फाबेट्स की जगह यूज कर रहा होता क्या, नंबर्स। तो उस केस में क्या हो जाता, उस वाले केस में देखिए बस तरीका वही होता। नंबर्स में क्या मैंने बोला था कि नंबर्स में आपको ध्यान रखना होगा किसके बारे में, नंबर्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा जीरो के बारे में। अगर मुझे 5 लेटर पैलिंड्रोम बनाना है, 5 जगह फिल करनी है, लेकिन इस जगह पे कितने ऑप्शन होंगे, 9, क्योंकि जीरो नहीं आ सकता। तो जो यहां आएगा वही यहां आएगा। यहां पे फिल करने के तरीके 10, क्योंकि यहां कुछ भी आ सकता है। तो यहां पे यहां पे जो ये 9 तरीके थे उन्हीं में से कोई एक ना एक आएगा। तो यहां पे नंबर ऑफ वेज को बेसिकली हमें 1 लिखना चाहिए। यहां 10 तो यहां 1 और ये इंडिपेंडेंटली 10। तो टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर पैलिंड्रोम्स विल बी 900, ठीक है। लेकिन अगर मैं 6 लेटर पैलिंड्रोम्स की बात करता नंबर्स के केस में, तो ये 9 तो ये 1, ये 10 तो ये 1, ये 10 तो ये 1। तो देख रहे हो ये भी कितना आता, 900 आता। सिर्फ क्या फिल करना है, लॉजिक वही है बस, लेकिन क्या फिल करना है उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। समझ में सबको यहाँ तक। तो आपके लिए मैंने ये कुछ 4 क्वेश्चंस और दिए बड़े सिंपल काउंटिंग के बेस पे। इन हाउ मेनी वेज कैन ए क्लीन एंड क्लाउडेड ओवरकास्ट डेज ऑकर इन ए वीक अज्यूमिंग दैट एंटायर डे इज आइदर क्लीन और क्लाउडेड। मतलब एक तरह से हमें क्या करना है, फोरकास्ट करना है कितने एक वीक का। एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो आपको हर डे जो हो सकता है या तो क्लीन या फिर क्लाउडेड हो सकता है। तो क्लीन तो हर दिन क्या हो सकता है, हर दिन के 2 ऑप्शन, इसके भी 2 ऑप्शन है, इसके भी 2 ऑप्शन है, इसके भी 2 ऑप्शन है। हर जगह के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो जब 2 ऑप्शंस हो गए तो अब बताओ ये पूरा काम कब होगा, जब 7 काम एक साथ होंगे। ऑल 7 डेज हैज टू बी फोरकास्टेड साइमल्टेनियसली। तो इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Hence the total answer will be 2 to the power 7, that is 128. Okay, so right answer will be 128 for the first one. Second, if all the letters of the Varun are written in all possible ways, then they are arranged in a dictionary. The rank of the word Varun. अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर आप जब अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, जब आप उसे करते हैं डिक्शनरी वाइज, तो यू अरेंज देम इन अल्फाबेटिक मैनर। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि वरुण वर्ड जो है उसमें 5 के 5 लेटर्स अलग अलग हैं। इन्हें अगर मैं अरेंज करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, जो कितना आएगा 120। तो 120 टोटल बन सकते हैं। लेकिन जब मैं उन्हें डिक्शनरी वाइज अरेंज करूंगा तो सबसे पहले वो वर्ड्स आएंगे जो ए से स्टार्ट होते हैं। अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या है इन 5 का, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है। तो ये इनका अल्फाबेटिक ऑर्डर है। तो इन 120 में से सबसे पहले वो वर्ड्स आएंगे जो ए से स्टार्ट होते हैं। देखिए डिक्शनरी में नंबर अगर निकालना है तो उसका आसान तरीका क्या रहता है, लॉजिक सिंपल सा उसका है कि आप काउंट करिए कि उस लेटर से पहले कितने आएंगे, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करिए जितने भी वर्ड ए से स्टार्ट होंगे, मतलब मुझे क्या करना है 5 जगह भरनी जिसमें ए पहली जगह फिक्स है। तो बाकी 4 लोग 4 जगह कितनी तरह से बैठे, 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। तो 24 वर्ड्स ऐसे होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे, वो पहले आएंगे। फिर इसके बाद फिर वो वर्ड्स आएंगे जो एन से स्टार्ट होते हैं, वो भी कितने होंगे 4 फैक्टोरियल, ठीक है, समझ में आया। तो ये 4 फैक्टोरियल होंगे। इसी तरह से बाकी के काउंट करिए जरा। सेकेंड क्वेश्चन में किसी को कहीं कोई डाउट है, कोई चीज पूछना चाहता है, प्लीज पूछे। एनीवन? कि बेटा देख वरुण वाले से पहले हमने पहले काउंट करा ए वाले कौन से, एन वाले कौन से, ठीक है।
फिर इसके बाद हम लोगों ने काउंट करा कि आर वाले कौन से, यू वाले कौन से, वी वाले कौन से। उसकी बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम वी वाले काउंट कर लेते हैं। वी वाले कितने थे? 24। तो 120 में से 24 हटा दो, कितने बचे? 96। तो 96 वो है जो वी से स्टार्ट नहीं होते, और वी से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर पहले ही आ रहे हैं, सारे वर्ड्स पहले ही आ रहे हैं। बताइए 96 पहले आएंगे, तो 96 के बाद जो स्टार्ट होगा वो वी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होंगे, तो वहां से काउंटिंग कर सकते हो। इससे थोड़ा सा टाइम क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे अगेन मैंने बोला कि आधा पेपर अंग्रेजी का है, आपको समझना है कि यहां पे अंग्रेजी में क्या लिखा, व्हाट्स रिटन इन इंग्लिश। फ्रॉम 1 to 1000 देयर कैन बी सिंगल डिजिट नंबर or a double digit number or a 3 digit number. How many single digit numbers can be formed without repetition? Only 9. How many 2 digit numbers can be formed without repetition? So this place can be filled as 9 ways. But whatever comes here, it cannot come here. But 0 which cannot come here can now come here. तो यहाँ पे कितने तरीके आएंगे? 9. So total numbers will be 81. In 3 digit numbers, what will happen? Here they have 9. There they have 9 and here they have 8. So 8. So single digit numbers are 9, double digit numbers are 81 and 3 digit numbers are 648. When you add up them, you will get 9, 1, 10, 8, carrying over 1, 9, 9 plus 4, 3, 8 से 12 से हो गया 3 और फिर एक आ गया एक्स्ट्रा 7। तो राइट आंसर विल बी 738। जस्ट लेट अस चेक द आंसर्स कि व्हाट द आंसर सेज। ओके, चला गया। सेवन 38 इज द राइट आंसर। वैष्णवी कहाँ गड़बड़ करी? हाँ, सब बाकी लोगों को समझ में आया कैसे करना है, कहाँ गड़बड़ हुई? देखो लॉजिक वही है, लेकिन कब किसको क्या करना, कैसे करना, बस यही सोचना है। और पीएनसी में दिक्कत यह है कि कुछ नॉर्मल चीजों तो मैं सिखा सकता हूं, लेकिन हर क्वेश्चन में लॉजिक थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? इन क्वेश्चन नंबर 4 देयर 6 रोज बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ए से लेके बी हाउ मेनी रूट्स आर देयर? 6। बी से सी में आपके 4 रूट्स हैं। तो पहला ऑप्शन पूछा है कि हाउ मेनी वेज कैन वी ड्राइव फ्रॉम ए टू सी बाय द वे ऑफ बी। तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे, पहले ए से बी जाना होगा, फिर बी से सी जाना होगा। ये करने के 6 तरीके, ये करने के 4 तरीके हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर हो जाता है 24। ठीक है, बी पार्ट में बोला है इन हाउ मेनी वेज वन कैन ड्राइव फ्रॉम ए टू सी एंड बैक टू ए पासिंग थ्रू बी ऑन द बोथ द ट्रिप्स। तो ए से सी जाने के थ्रू बी कितने तरीके थे? 24। और वापस आने के भी कितने तरीके होंगे? 24। तो जाने के 24, आने के 24, दोनों एक के बाद एक होना है, तो मल्टीप्लाई, आंसर हो जाएगा 24 का स्क्वायर। ठीक है, सी वाला केस जो है, सी वाले केस में क्या होगा? इन हाउ मेनी वेज कैन ड्राइव सर्कुलर ट्रिप डिस्क्राइब्ड इन सेकंड विदाउट यूजिंग द सेम रोड मोर देन वंस। अब देखो बेसिकली अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, किसी रोड पे आपको 2 बार नहीं चलना है। तो आपका काम क्या है? पहले ए से बी, बी से सी, सी से बी और बी से ए, ये आना है। तो ए से बी जाने के 6 रास्ते थे, बी से सी जाने के आपके पास 4 रास्ते थे, लेकिन अब सी से बी आने पे जो रोड पहले ट्रैवल करी वो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो 3 तरीके। बी से ए आने के लिए आपके पास 6 तरीके थे, लेकिन जो पहले ट्रैवल हो गई वो ट्रैवल नहीं करना, तो 5 तरीके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 6 3 जा 18 into 5 4 जा 20, that will give you 360 ways. So there are total 360 ways in which no road will be traveled twice. ठीक है,
यहाँ पे अब कई लोग इसमें ऐसा सोच रहे होंगे सर जाने के 24 तरीके, अगर जाने के 24 तरीके तो जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से आएंगे नहीं, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 23 हो जाएंगे, तो 24 इंटू 23। अब ये वाला जो नंबर आएगा वो 360 नहीं आता, तो मतलब ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि नो पार्ट ऑफ द रोड हैज टू बी ट्रेवल ट्वाइस। ठीक है, आप ए से बी एक रास्ते से गए थे, फिर बी से सी अलग गए, सी से डी अलग गए, सी से बी अलग गए, बी से ए अलग गए। लेकिन अगर आपने बी से ए में वही रोड ट्रेवल कर ली जो ए से बी में कर, रास्ता तो अलग था, लेकिन ए टू बी वाला पार्ट 2 बार ट्रेवल हो रहा है, तो वो हमें काउंट नहीं करना है। ठीक है, इस कारण से ये वाला तरीका यहां पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आए सारे क्वेश्चन? ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड हिस्ट्री। ठीक है, इन हिस्ट्री ईच लेटर हैज टू बी यूज्ड एट मोस्ट वंस, ये हमने बता रखा है। तो यहां पे 5 कॉन्सोनेंट्स हैं और 2 क्या है वॉवेल्स। टोटल आपके पास 7 लेटर्स थे, जिनमें से 2 वॉवेल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, आपको 4 जगह फिल करनी है। सबसे पहले बोला है कि हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन्स ओनली कॉन्सोनेंट, मतलब 4 जगह मुझे इन 5 लोगों से भरनी है। तो बेसिकली मुझे यहां पे करना क्या है, फर्स्ट पार्ट में पहले फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। तो बेसिकली 4 लेटर वर्ड फर्स्ट पार्ट में, 4 लेटर वर्ड कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं फर्स्ट पार्ट में। तो लोग कितने हैं 7, कितनी जगह है 4, तो सिंपल 7 लोगों को 4 जगह बैठाना है। कितने तरीके 7p4। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई 7 में से 4 सिलेक्ट कर लो 7c4 और 4 लोगों को 4 जगह बैठा दो 4 फैक्टोरियल, दैट विल आल्सो वर्क। ठीक है, तो इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड वाले केस में बोल दिया देखो ये लड़के हो गए तो ये लड़कियां हो गई। तो अब यहाँ पे लड़के लड़की वाले जो हमने केस करा उससे कंपेयर करें तो बेसिकली 5 लड़कों को ही इन 4 जगह बैठाना है। तो बेसिकली 5 को 4 जगह पे परम्यूट करना है, तो दैट विल गिव यू 5p4। ये आप या फिर आप ये कर सकते हो 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आपका 120 आ जाएगा। इन जनरल याद रखिएगा कि np(n-1) ये जो आएगा वो कितना आएगा, np(n-1) n फैक्टोरियल ही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट की बात करते हैं। हाउ मेनी ऑफ देम बिगिंस एंड एंड्स इन ए कॉन्सोनेंट, इनमें से कितने बिगिन करते हैं कॉन्सोनेंट से और एंड भी करते हैं कॉन्सोनेंट से। तो 1 2 3 4 जगह फिल करनी है। तो ये भी कॉन्सोनेंट आएगा, ये भी कॉन्सोनेंट आएगा। तो पहले 5 कॉन्सोनेंट में से एक को यहां बैठा दो 5। अब जो बचे उनमें से एक को यहां बैठा दो 4। 7 लोगों में से मैंने 2 जगह फिल कर दी। अब बाकी के 5 लोगों से मुझे क्या करनी है, मुझे 2 जगह फिल करनी है। तो बाकी 5 में से ये फिल करने तरीके 5 और ये फिल करने तरीके 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, 5 4 20, दैट विल गिव यू 400। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका यहां पे कितना 400। ठीक है, फोर्थ केस की बात करूं, फोर्थ वाले में हाउ मेनी ऑफ देम बिगिंस विद ए वॉवेल, मतलब पहली जगह पे किसको आना है वॉवेल। तो इसको फिल करने तरीके 2। अब कितने लोग बचे 6 को 3 जगह बैठाना है, जैसे चाहो वैसे बैठाओ 6p3। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो 720 डिवाइड बाय 6 120, तो ये आपका आंसर 240 आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाला हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन्स द लेटर y। अब y को तो आना ही आना है, तो पहले काम करो y को कहीं बैठा दो। तो y को प्लेस करने के तरीके कितने होंगे 4। देयर आर 4 वेज ऑफ प्लेसिंग y। ठीक है, y को कहीं बैठा दिया, लेट्स से यहां बैठा दिया y को। तो अब कितने लोग बाकी बचे 6। उन 6 लोगों को कहीं पे भी बैठा दो। उन 6 लोगों को बैठाना है कितनी जगह 3 जगह, तो 6p3। ठीक है, y तो आना ही आना है, तो 6p3। 6p3 कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अगेन 120। तो ये आपका 4 हो जाएगा 480। ठीक है, फिर छठवां केस हाउ मेनी ऑफ देम बिगिंस विद t एंड एंड्स इन ए वोवेल। तो मतलब 4 जगह फिल करनी, देख लो बस रिस्ट्रिक्शन चेंज हो रहा है, काउंटिंग का तरीका वही है। पहली जगह पे कौन आएगा t, एंड में आना चाहिए वॉवेल। तो वॉवेल के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास 2। अब कितने लोग बचे, 2 जगह भर गई, लोग कितने बचे हमारे पास 5। ठीक है, 5 लोग बचे।
क्योंकि एक टी बैठ गया और एक वॉवेल बैठ गया, इन 5 लोगों को 2 जगह बैठाना है तो 5p2, तो बीच वाली जगह फिल करने के तरीके हैं 5p2, तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 5p2 into 2, तो 5 factorial upon 3 factorial, 120 divided by 6, that will give you 20 into 2, that will give you 40। ठीक है, जितने रिस्ट्रिक्शन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ केस कम होते जाएंगे। ठीक है, 7th वाला केस, इट बिगिंस विद टी, टी से स्टार्ट करे तो टी को यहां बैठा दो, एंड ऑल्सो कंटेन्स एस, तो एस को कहीं ना कहीं बैठाना है, तो एस को बैठाने के तरीके कितने, 3। ठीक है, 3 तरीके से एस को फिल करोगे। फिर इसके बाद एक जगह मान लो एस को आपने यहां प्लेस कर दिया, तो बाकी बचे 5 लोगों को बैठा दो, तो कैसे भी 5p2, तो अगेन दिस विल 20, दैट विल गिव यू आंसर 60। ठीक है, और फिर 8th पार्ट विच कंटेन बोथ द वॉवेल्स, तो पहले क्या करो, पहले 2 वॉवेल्स को बैठा दो, तो 2 वॉवेल्स के लिए कितनी जगह है, 4 में से कोई 2 वॉवेल्स सिलेक्ट कर लो, 4c2, उन 2 जगह पे 2 वॉवेल्स को अरेंज कर दो, 2 फैक्टोरियल। अब जगह कितनी बची, जगह बची आपके पास 2 जगह पे बाकी 5 लोगों में से किसी भी 2 को बैठा दो, 5p2। अब यहां पे सिलेक्शन क्यों करा, क्योंकि उन 2 के पास बैठने के लिए चीज लोग जगह ज्यादा थी। ठीक है ना, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, 4c2 कितना हो जाएगा, 4 3 by 6, 6 into 2 12, 12 into 5 factorial upon 3 factorial, 120 divided by 6, तो ये हो गया 20। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 240। समझाया, तो इस तरह से भाई लड़के लड़की को बैठाने वाला केस है, लेकिन बस उनके बैठने के मिजाज अलग अलग चेंज हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, काउंटिंग करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने करे हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो आप देखिए कि यहां पे ये कुछ होमवर्क है आपके लिए, जो क्वेश्चन हमने आज करे हैं उसके हिसाब से आप लोग इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ठीक है, दैट यू कैन ट्राई। एनसीईआरटी का 7.1 और 7.2 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एलिमेंट्री क्वेश्चन। जिस एक बार आपको समझ में आ जाएगा सब कैसे हो रहा है, तो आप आगे का बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो बी पेशेंट, धीरे धीरे सब चीजें आने लग जाएंगी, लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन एलिमेंट्री फॉर्म में आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के तरीके समझ में आने चाहिए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे फिर से मिलते हैं। ओके।